So we have to getting started. आज 9/6/2020 का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर. All of you getting my voice and video clear? Let's inform me one more time. Yes, sir. Yes, sir. It's Okay, clear. okay. That's great. Okay, so let's getting started about a part what we have done on yesterday. क्या किया था yesterday? Yes, class. Homeostasis. And now what is homeostasis actually, by the way? क्या होता है? Sir. कुछ याद है? Yes, sir. Regulation. Regulation, maintaining of a body, regulation. Okay, so that is about somewhat about a part for homeostasis. और अगर देखा जाए homeostasis के हवाले से, तो I told you one thing that we're gonna have to study about for homeostasis, and that homeostasis will be divided into the following three parts. Number one is osmoregulation, Thermoregulation and excretion. thermoregulation, and yes, that's great. Our very last part, that is excretion. Now, if I'm asking about a very first thing, that is the category in which we are dividing homeostasis, that is basically divided into three parts. What are they? Number one is osmoregulation, thermoregulation, and a very last thing, that is excretion. ठीक है, यही था. If I'm asking about very first part, that is called osmoregulation. Now, what do we mean by this word osmoregulation? क्या मतलब होता है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? Any idea about a thing? The movement of molecules from high concentration to lower concentration. Movement of or the molecules. maintenance. Okay. Maintenance between solvent and water. Okay. Now I get it. Now you got it. That's very great. You got it. You got the thing right and clear. Now I'm dividing the things over here. That osmoregulation. I just divide the things. I just tell you about a thing कि देखो, जब भी तुम लोग बायोलॉजी पढ़ो या कोई मेडिकल टर्म पढ़ो, तो उसको ब्रेक करने की कोशिश करो. It is being enlarged, और मैं तुम लोग को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखो, osmoregulation is not a one word. It is a word which is being divided into the two parts. And now what do you see over here? क्या देख रहे हो यहाँ पे? Osmo and regulation. Osmo and regulation. और तुम लोगों को कल मैंने रेगुलेशन का मतलब बताया था, क्या था? कल रेगुलेशन का मतलब बताया था, नहीं बताया था? कि रेगुलेशन कंट्रोल, जैसे कि फैन का रेगुलेटर होता है, स्पीड मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रेगुलेशन? रेगुलेशन मींस कंट्रोल. रेगुलेशन मींस व्हाट? It meant to be as for control. Regulation meant to be as for what? It meant to be as for control, or what we can say, maintain, isn't it? Can I use this word? So regulation meant to be as for what? Control or maintain. And now let's see this word that meant to be as for what? क्या word है ये? That word goes for osmo. And now what do we mean by the word osmo? Osmo meant to be as for what? One more thing I'm gonna have to ask each and everybody, all of you getting my voice and video clear? किसी को कोई lacking तो नहीं हो रही, कोई मसला तो नहीं हो रहा? No, sir. Yes, sir, it's clear. No, sir. Okay, that's great. Inform किया करो, सब lively रहो. और मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, what do we see over here? The word, what is that word actually? क्या देख रहे हैं यहाँ पे word? देखो और बताओ मुझे, what is that word? Osmo. Have you heard that word? Osmo. What is it? What it could be? What it could be? चलो एक चीज अभी तुमने से किसी ने मुझे बताया था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, समथिंग लाइक दैट. किसी ने बताया था कुछ ऐसे ही बताया था ना? ओके, दैट्स वेरी ग्रेट. तो क्या बताया था, दोबारा बताओ. तो मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम different concentrations. From different, higher from to lower, Right higher to from lower या lower osmosis. to lower. Across different concentrations. चलो osmo का word we can make it for osmosis. Can we make it osmosis, isn't it?
भाई the word osmo meant to be the word for osmosis. Osmosis. So what do we mean by the word osmosis? Yes, Lars. The movement of molecules from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane. And would you like to inform me कि what is semi-permeable membrane actually, by the way? सर जो कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देता है, कुछ को नहीं होने देता. तो कुछ को पास होने दे और कुछ को पास नहीं होने दे, ना होने दे. So why we are studying osmosis over here? हम osmosis क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम डिफ्यूजन भी तो स्टडी कर सकते हैं, हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी तो स्टडी कर सकते थे. Why we only choose a thing that is osmosis? Basically, मैं दोबारा से पहले अपना लेक्चर कंक्लूड करूं, फिर तुम लोग उसको मुझे आंसर आउट करो. We are studying homeostasis, and you know very well that homeostasis meant to be the word for maintaining and balancing of a body. फिर यहाँ पे बात आई कि homeostasis dividing into the three part: osmoregulation, thermoregulation और excitation. We are not starting thermoregulation and excitation. पहले मैं इस word को loud and clear कहना चाहता हूँ कि what it could be. तो a very first thing which we gonna have to make osmoregulation. The first thing come on our mind that what is osmoregulation. तो यहाँ पे देखते हुए हमें पता चल रहा है कि ये word दो पार्ट में कैटेगराइज हो रहा है. One is osmo and another one would be regulation. ठीक है. देखो अब हमें बिल्कुल देखो बायोलॉजी पढ़नी है या मेडिकल पढ़ना है तो हमें अक्सर कहते हैं कि बायोलॉजी पढ़ने की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे करते हैं. कंसेप्चुअल होती है, डेरिवेशंस होती है. क्या करते हैं अक्सर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट टॉन्ट करते हैं ना हमें एक वर्ड से कि बायो पढ़नी, बायो तो बहुत इजी है, क्या करना पड़ता है बायो में सिर्फ, क्या कहते हैं. अरे कोई टॉन्ट करता है ना हमें कि बायो में तो सिर्फ ये करना. नहीं कर पाते टॉन्ट. इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन जो लूजर्स होते हैं वो करते हैं ना कि बायो में सॉरी एक रट्टा लगा के पास हो जाओ. ये दैट्स ग्रेट. ये चीज मैं सुनना चाह रहा था कि रट्टा लगा के पास हो जाओ. तो बेटा रट्टा नहीं लगाना हमने. अब होता है ना डेफिनेशंस लिखी हुई है, बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखी हुई है. यू डोंट हैव टू फॉलो द डेफिनेशन. तुम लोगों के अंदर इतनी कमांड होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि इफ यू सी द टर्म ऑस्मो रेगुलेशन सो यू कैन मेक योर ओन वर्डिंग. तो देखो ना, ऑस्मो रेगुलेशन, regulation means maintain, osmo means what is it? Osmosis. Maintaining the body by means of Osmosis. that is called what? Osmoregulation. कोई मसला है यहाँ पे? देखो डेफिनेशन आसानी से बन गई. क्या बनी? Maintaining the body by means of Osmosis. Maintaining the body by means of osmosis. That रेगुलेशन लिख दिया. maintaining the body by means of osmosis. That is called osmoregulation. Maintaining the body by means of osmosis. That is called what? That is called osmoregulation. तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ. देखो, why in homeostasis we use the word osmosis? हम homeostasis में osmosis का word क्यों use कर रहे हैं? We can use the word, हम यहाँ पे ये words भी तो include कर सकते थे. Diffusion, active transport. Why we only use the word osmosis? क्या इससे reason बन सकता है हमारा? तो बिल्कुल बन सकता है. बिल्कुल बन सकता है. Reasoning क्वेश्चन. तो अक्सर तुम लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स कहते हैं कि रीजन हम आखिर में करवाएंगे. मैं ये कहता हूँ कि भाई टॉपिक के साथ ही रीजन बन रहा होता है, isn't it? टॉपिक के साथ साथ ही रीजन बन रहे हैं ना. तो वी गोना कवर द टॉपिक विद द रीजनिंग क्वेश्चन एज वेल, विद द एमसीक्यूज एज वेल. भाई जो टॉपिक हम कर रहे हैं, इफ वी हैव अ कमांड वी कैन मेक द रीजन, इफ वी हैव अ कमांड वी कैन मेक द एमसीक्यूज. हो सकता है, नहीं हो सकता. तो अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को एक रीजन पॉइंट आउट करूं, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, तो राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक कि व्हाई इन होम्योस्टेसिस द ऑस्मोसिस वुड बी इन्वॉल्व. व्हाई इन होम्योस्टेसिस ऑस्मोसिस वुड बी इन्वॉल्व. डिफ्यूजन क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा? तो इसका आंसर मुझे तुम लोग कब करोगे? आज तो कर नहीं सकते, आज तो कर नहीं सकते. तो यू गोना हैव टू मेक दिस रीजन
on tomorrow class. कल जो क्लास होगी उसमें तुम लोग मुझे इसका आंसर बताओगे कि in homeostasis why osmosis would be involved. लेकिन अगर मैं अभी तुम लोग से पूछना चाहूँ कि why class, why, what could be the reason हम diffusion को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, हम active transport को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? सर क्योंकि उसमें वो ऑस्मोसिस ही होता है जो मेंटेन करता है कंसंट्रेशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स की, और उसको बैलेंस करने के लिए होम्योस्टेटिस में वो जरूरी है ये दोनों चीजें. Either only the solute and solvent would be balanced by means of osmosis. It cannot maintain by means of diffusion. It cannot maintain by means of active transport. सिर्फ उसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो फिर एक्सटर्नल एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी ना, उसके बगैर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है. So why the osmosis would be involved over here? सर क्योंकि वाटर हमेशा हाई टू लो, ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन टू लो जाती है और वाटर हमेशा हाई टू लो ही. डिफ्यूजन में भी तो हाई टू लो होता है. डिफ्यूजन सर में भी मेम्ब्रेन भी है ना ऑस्मोसिस में. Exactly. मेम्ब्रेन की वजह से. भी है और डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं है. और हमारी सेल कवर्ड ही किससे होता है? हमारा Plasma सेल membrane. exactly. Plasma So membrane. that is the reason why in homeostasis the osmosis would be involved due to what? Due to, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. so would you get the answer? यस कि why देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं ना, हाई टू लो या लो टू हाई, जो तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 द सेल में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में पढ़ा होगा. अगर तुम लोगों ने वो चैप्टर्स पढ़ लिए थे विद द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो मैं अब फिर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे होम्योस्टेसिस में ऑस्मो रेगुलेशन, सिर्फ डिफ्यूजन यहाँ पे क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा? बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट आवर सेल मेम्ब्रेन विल बी कवर्ड बाय मींस ऑफ व्हाट? बाय मींस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो तुम लोग से रीजन पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है. पूछा जा सकता है सर. So that is the reason which you're gonna have to include over here. Why in homeostasis the osmosis would only involve. So why it would be involved? Due to the part that is called plasma membrane, because the concentration gradient occur across the plasma membrane. जो concentration gradient है, high concentration से low concentration में आना या फिर low से high तो active transport क्या है? Mostly तुम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा that is called, have you seen that word? Now what is it called? क्या कहला रही है? एंडोसाइटोसिस. And now what do we mean by the word endocytosis? Word breakdown करो. एंडो मींस इनसाइड. Cytosis. साइटो मींस सेल. Inside the Cell. when anything goes inside the cell, that is called. taking of molecule inside by the cell. When anything goes inside the cell, that is called what? Endocytosis. Endocytosis. And the thing can goes inside the cell by means of a process that is called Osmosis. across the Plasma membrane. across the plasma membrane. So Plasma when membrane. anything goes inside the cell by means of plasma membrane, that process is called endocytosis. And now you have studied these two terms as well. यहाँ पे दोनों ने ये दो terms भी study किए हैं. Plus you can see over here phagocytosis and a very next term that's called what? Pinocytosis. तो कुछ terms याद आ रही हैं? Yes, sir. Okay. Now what do we mean by the word phagocytosis and pinocytosis? Sir, when a cell Food rupture, particle is taken inside. Okay. Phago means eating. Phago का मतलब क्या है? yes, sir. Eating. Eating. Pino, drinking. 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 Sir. Phagocytosis. हाँ बिल्कुल ठीक. Phago मैंने क्या कह दिया word? Eating. याद रहेगा Eating. इससे? Eating. Yes, sir. What do we mean by eating? Taking Food. enough food. Taking solid Food food. particle. Taking food particle, taking solid thing inside the body. That is called what? Phagocytosis. And pinocytosis, drinking. मैं अभी pinocytosis को किससे मार्कअप कर रहा हूँ? ड्रिंकिंग से. नजर नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से. एक मिनट. Can see it. ठीक है, अब आ रहा है. Phagocytosis, a cell eating process in which the solid food come inside the cell, and pinocytosis, a process in which the liquid thing come inside the cell. So that is somewhat a certain introduction regarding about a topic which is called osmoregulation. And yes, class, maintaining the body by means of
maintaining the body by means of osmosis. That process referred to be as for what? Referred to be as Osmoregulation. regulation. तो कोई मसला यहाँ पे osmoregulation, we can see it over here कि in osmoregulation, Excuse me, sir. एक मिनट. Okay, let's getting started. Osmoregulation, we can see over here. Osmo meant to be as the word osmosis. Regulation meant to be as for maintaining the body by means of osmosis. And you know very well that what is osmosis. दोबारा बताओ osmosis क्या होता है? Movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through semi-permeable membrane. Through semi-permeable membrane. Why the semi-permeable membrane would be involved? Why the osmosis would be involved? Why diffusion would not be involved? Diffusion क्यों नहीं involved हो रहा? हाँ. Because concentration gradient is developed across the plasma membrane. Concentration gradient always goes across the plasma membrane, so that is why we using the word osmosis. And by means of osmosis, the process which have to be occurred, that is called endocytosis. Endo means inside, cytosis means cell. The process in which anything comes inside the cell, that is called endocytosis. And you can see it over here. We have the two things regarding endocytosis. One is called phagocytosis and another one would be pinocytosis. So phagocytosis का मतलब कहीं पे भी आए तो उसको indicate कर देना कि phago means eating. When any solid material come inside the cell, that is called phagocytosis, and when any liquid thing come inside the cell, that is called pinocytosis. कोई मसला osmoregulation के term के हवाले से? No, Excuse me, sir. sir, आपने जो रीजन पूछा उसके कोई कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आप एक दफा बता दें. मतलब मुझे समझ आ गया लेकिन उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जो मैं देखो what I can't get what do we mean by the word comprehensive answer? मतलब आधे पेज का आंसर दे दें सर या एक पेज का आंसर दें? नहीं सर, मतलब वो सारे पॉइंट टू द पॉइंट हम लिखें और जो हमें बताना चाहिए वो आ भी जाए 2-3 लाइनों में. You gonna have to cover only the thing which is called plasma membrane. कि ओके कैसे करोगे अब मुझे आंसर बताओ. तो वही मैं पूछना चाही थी लेकिन चलो okay. तुम एक जरा सा मुझे खुद पहले बताओ. I am over here to correct. गलत होगा मैं बता दूंगा या कुछ मॉडिफाई करना होगा, एडिशन करनी होगी, सबट्रैक्शन करनी होगी, मैं हूं ना बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ट्राई तो करो. Okay. हाँ, take your time, we have enough time. और those who want to try, they can try as well. मैं अपना रीजन दोबारा से रखता हूँ तुम लोगों के सामने. मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था कि why in homeostasis osmosis would be involved. Why in homeostasis osmosis would be involved. Homeostasis में osmosis क्यों involve हो रहा है भाई? Diffusion भी तो involve हो सकता है, active transport भी तो involve हो सकता है. हाँ, osmosis क्यों involve हो रहा है? What is the reason? How will you make the answer? Just try to make it. Take your time. 1 minute लो, 2 minute लो. Take your time, but inform me. सर वही आंसर होगा because हाँ, of बिल्कुल cell बिल्कुल membrane. बिल्कुल वही आंसर होगा, लेकिन Bioconsistent उसको थोड़ा सा सही से मॉडिफाई करके बताओ मुझे. Osmosis is involved because the concentration gradient occurs across the plasma membrane. हाँ, ये सही है कि in homeostasis the osmosis would be involved because the concentration gradient comes across the plasma membrane, and in osmosis the partial permeable membrane or the selective permeable membrane would be involved. So that's why osmosis would be involved in homeostasis. ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तुम सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंडिकेट करके भी अपना आंसर दे सकते हो, but don't start your answer with the word of because का वर्ड नहीं करना पहले कुछ यही कहना कि in homeostasis the osmoregulation would be involved. In homeostasis the osmosis would be involved due to the concentration gradient occurs across the plasma membrane. So when we are checking the notes, when we are checking the viva, when we are checking your examination copy, जो भी हम लोग की एग्जामिनेशन कॉपी होती है उसमें हम लोग पूरा सेंटेंस नहीं देख रहे होते, उसमें हम लोग सिर्फ टारगेट पॉइंट देख रहे होते हैं. ये that you involve the plasma membrane, it would be right. We are award you the 2 marks. 2 marks का रीजन होता है ना, तो उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि पूरा सेंटेंस कैसे लिखा है. हाँ, सेंटेंस अच्छा लिखा होगा, मॉडिफिकेशन अच्छी होती है, एक गुड इंप्रेशन पड़ता है, एक गुड एटीट्यूड पड़ता है. बट
The thing which we are only discussing that what could be the answer which we want. अगर वो आंसर हमें मिल जाता है, so we can award the 2 marks. मैं अवार्ड कर देता हूँ, ठीक है ना. और कोई मसला, और कोई टॉपिक, और कोई चीज इसमें जो मुश्किल हो मुझसे पूछ सकते हो. Anyone? Anyone? और किसी ने आंसर मेकअप किया अपना? ओके, कोई मसला क्लास यहाँ तक ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से? इन्फॉर्म मी ऑन योर चैट, इन्फॉर्म मी ऑन योर माइक. माइक में बता दे जाओ क्लास. शुड आई रैप दैट पार्ट? सर मैंने लिखा सर है. हाँ बोलो. In osmosis, molecules move from higher concentration to lower concentration through a plasma membrane, and in homeostasis, we need to balance the gradient. That's great. Which requires plasma membrane. In homeostasis, we require concentration gradient, which require plasma to maintain. हाँ, which require okay, plasma. पहले membrane. तुमने osmosis की definition दे दी और उसके बाद अपना आंसर जी. कोड कर दिया. That's great. That's जी. great. That is good. That is good. और किसी ने लिखा हो तो मुझे आंसर बता सकता है. Anyone? Anyone else? Or we can move on to the next part. चलो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं. अब हमने आंसर मुझे सबमिट करते जाना. तुम लोग का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप पे भी सबमिट कर सकते हो मुझे आंसर. Okay, so let's get on to the part. What we are the next thing to start? Next year हमारे पास चीज स्टार्ट करने के लिए. What is the next thing which I have to start? अरे भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या था मुझे जल्दी बताओ. अभी तो हम लोग that's great, thermoregulation. So remember the topics as well. ये अभी हमने बहुत shortly indicate किया है. इसको अभी हम मजीद indicate करेंगे. But first we have to know the terms. First we have to know the 3 terms that what is osmoregulation, what is thermoregulation, and what is excretion. ये 3 terms को हमें पहले indicate करना है. तो पहले हम indicate कर लेते हैं, उसके बाद हम सारी चीजों को indicate पढ़ते रहेंगे डिटेल में. Okay. So let's getting started with our next part that is called thermoregulation. Now what do you see about this term thermoregulation? You know about the word meant to be as for what? Regulation. Regulation का मतलब क्या होता है? Control. Maintaining. सर Can I मेंटेन करना. maintain करना? बिल्कुल. Maintaining the part. Maintenance. Okay. Now what do we mean by the word therm? Heat. Therm. Maintaining the heat. Heat. हाँ ठीक है. therm का मतलब heat होता है. Can I use the word temperature over here? Yes, sir. Okay. Maintaining. Yes, sir, we can use temperature. Maintaining internal body temperature. Maintaining internal body temperature. Maintaining thermoregulation का वर्ड हम लोग किस तरह फॉर्म कर रहे हैं? Maintaining internal body temperature. That is called what? Thermoregulation. Now I want to ask one thing class. कि मुझे बताओ जरा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? What is 37 the? degree centigrade. 37 degrees centigrade. 7 degrees Celsius. अच्छा 37 degree centigrade. 37. I am bit arguing that point, and I am making that point over here in a way like that. मैं फ़ारेनहाइट में कर दिया आपने. अच्छा क्यों किया? वजह क्या है? क्या लिखा हुआ है मैंने? क्या टेम्परेचर मैंने तुम लोगों को दिया? तुम लोगों ने मुझे क्या दिया था? दोनों में क्या फर्क है? और मेरा वाला सही है, तुम लोगों का वाला सही है, क्या सही है बताओ? तो दोनों सही है. स्केल का डिफरेंस है फ़ारेनहाइट में और 0.2. मैंने तो स्केल का डिफरेंस दिया ही नहीं. मैंने तो एक्चुअल वर्डिंग दे दी कि तो पॉइंट्स का degrees डिफरेंस है. अच्छा difference है. तो क्या मैं इसको राउंड अप कर सकता हूँ? तुम लोग इसका राउंड अप वर्जन ही कह रहे थे ना कि ये 0.8 है, तो तुम लोगों ने उसको राउंड कर दिया. ये किया ना तुम लोगों ने? तो आई नो दिस थिंग वुड बी राइट और रॉन्ग. राइट है या रॉन्ग है? It's right. इट्स राइट. सो इफ इट इज राइट तो इसको भी तो राउंड करोगे. 99 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 99 Fahrenheit. ओके तो मुझे बताओ थर्मामीटर में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करते हैं या फ़ारेनहाइट पे चेक करते हैं? फ़ारेनहाइट में. अच्छा और मैंने तुम लोग से फीवर का टेम्परेचर पूछा या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पूछा है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. और अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मतलब नॉर्मल, जब तुम लोग नॉर्मल हो तो तुम लोग का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि
you would be better to take your class when your body temperature would be 99. ऐसा है? Yes, sir. नहीं सर. मतलब क्या No, तुम लोग बेटर फील करोगे 99 फ़ारेनहाइट पे? नहीं सर. नहीं करोगे नहीं. ना, नहीं करोगे तो नहीं. दैट इज अ No, sir, थिंग. no. अगर तुम लोग इसको राउंड अप करते हो तो इसको भी राउंड अप करो, और अगर इसको राउंड अप करते हो तो 99 फ़ारेनहाइट इज नॉट अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. इसमें क्या होता है, फीवर आ चुका होता है, स्लाइट फीवर आ चुका होता है. सो आई एम नॉट फॉलोइंग दैट पार्ट. मुझे ये जो राउंड अप वैल्यू है ये बिल्कुल भी कवर अप नहीं करता मैं. यू वांट टू नो दिस टर्म, ठीक है ना, कि यू आर बीइंग ऑन एडवांस लेवल. तुम लोग एक एडवांस लेवल पे मौजूद हो, तो तुम लोग को एक एडवांस, एक सही चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए, एक एक्यूरेट चीज पता होनी चाहिए कि द टेम्परेचर वी हैव of human, that is 36.8 degrees centigrade, which is being equivalent to 98.6 Fahrenheit. That is the normal body temperature, and maintaining this body temperature, that process is called what? Thermoregulation. कि इस प्रोसेस को मेंटेन करना, इस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है क्लास? दैट कॉल व्हाट? दैट कॉल थर्मोरेगुलेशन. कोई मसला यहाँ पे? No, sir. Thermoregulation. Thermoregulation means the body have to maintain the internal temperature. As we know that the human being would be categorized as what? Human being categorized क्या होता है? Homeotherm. या homeotherm तुम लोगों ने temperature, homeotherm का word तुम लोग, Warm blooded. that is Warm warm blooded. Warm blooded. कि those organisms which cannot change their internal their body body temperature, जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट. ऐसा नहीं है कि अभी बाहर गर्मी हो रही है तो मैं अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, मेरा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. इंटरनल मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा बाय मींस ऑफ माय इंटरनल फैक्टर. तो इंटरनली बॉडी टेम्परेचर अपना मेंटेन कर रही होती है, और वो कैसे मेंटेन कर रही होती है? बाय मींस ऑफ अ पार्ट, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस. कौन से पार्ट से मेंटेन कर रही होती है क्लास? What was that part is called? You see the board? Hypothalamus. Hypothalamus. And where does this hypothalamus would be present? This hypothalamus would be present onto the part of, that would be the part of what? That would be the part of Brain. 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 तो ये hypothalamus क्या कहलाता है हमारा? It happens to be a set point. क्या कहलाता है ये? क्या कहलाता है ये? Set point. Set point क्या होता है? कभी आयरन किया तुम लोगों ने? कपड़े प्रेस किए हैं? Yes, sir. हाँ, कपड़े प्रेस किए हैं ना? कभी किए हैं, नहीं किए? जी सर किए हैं. आयरन Yes, sir, इस्त्री यूज की है ना? तो होता क्या है कि जब हम इस्त्री ऑन करते हैं तो रेड लाइट जलती है. जलती है नहीं जलती? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलती है. अच्छा, और थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाती है. जी सर जब वो काफी गर्म हो जाता है उस पॉइंट पे तब बंद हो जाती है. जब मतलब मुझे अगर मिनिमम गर्म करनी है तो वो उस पॉइंट पे आ जाएगा, नोब होती है. अगर वो उस पॉइंट पे आ जाएगा तो वो लाइट क्या होगा? जलना बंद हो जाएगी. ऐसे ही है ना? बंद हो जाएगी. जी सर. क्यों? क्योंकि सर वो उस टेम्परेचर पे आ जाती है जिस पे हम चाह रहे होते हैं. जो हम टेम्परेचर चाह रहे होते हैं उस टेम्परेचर पे आ गई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कट डाउन हो जाएगा. सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट डाउन हो जाएगी. मींस के जितनी इस्त्री गर्म होनी थी वो उस सेट पॉइंट पे आपका टेम्परेचर आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी उसके बाद क्या हो जाएगी? कट डाउन हो जाएगी. ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना क्लास? जी Yes, सर. sir. अच्छा, जी सर. एक और एग्जांपल लेते हैं एयर कंडीशन की. एसी को हमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी हाँ, एसी को हमें किस टेम्परेचर पे रख के चलाना चाहिए? एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइस आ रही होती है 26 पे ज्यादा गवर्नमेंट हमें बोल रही होती है कि एनर्जी का बेतहाशा यूज ना हो, तो इसलिए हमें अपना एयर कंडीशन 26 पे चलाना चाहिए. क्यों? होता क्या है कि जैसी रूम टेम्परेचर हमारा 26 से पहुंचता है, हमारा कंप्रेसर पे जो एनर्जी आ रही होती है वो कट डाउन हो जाती है. मतलब व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर मीट विद द
इंडिकेटिंग टेम्परेचर, तो उससे होगा क्या कि जैसी टेम्परेचर मैटअप करता है तो कंप्रेसर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट डाउन हो जाती है। ऐसे ही होता है ना क्लास, कंप्रेसर बंद हो जाता है और जैसी फिर गर्मी हो रही होती है तो फिर से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। यही मैकेनिज्म हमारा फ्रिज में भी होता है, यही मैकेनिज्म हमारा डीप फ्रीजर में भी होता है, ये मैकेनिज्म हमारा इस्त्री में भी होता है और ये मैकेनिज्म हमारा एयर कंडीशन में भी होता है। ऐसे ही क्लास सर ऐसे Yes, आम sir. जबान में ट्रिप बोल रहे होते हैं, जैसे ट्रिप हो गया है, राइट? वही वाला बोल रहे हैं ना कि आप थोड़ी देर के लिए वो बंद हो जाता है, फिर दोबारा कंप्रेसर ऑन होता है। exactly आई एम सेइंग दैट पार्ट। ये मैकेनिज्म देखो, these are all the thing which having the thermostat, इन सबके पास क्या मौजूद होता है? थर्मोस्टेट में मौजूद होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। और हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट कहाँ मौजूद है? देखो ब्रेन में हाइपोथैलेमस brain के में, अंदर। that part is called hypothalamus, which is responsible for what? Which is responsible for maintaining the internal temperature of a body, और वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एक सेट पॉइंट पे रखता है। एंड व्हाट इज दैट? 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। इजंट इट क्लास? यही होता है। Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके, नाउ आई एम आस्किंग अबाउट अ पार्ट कि हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज क्यों होता है? why our body temperature rises? हमारा body temperature rise क्यों होता है? what is the reason of बॉडी that? टेम्परेचर राइज होना एक सिम्टम है कि इंटरनली कुछ वर्क हो रहा है। जैसे वाइट ब्लड सेल्स आप रिएक्शन के बाद कुछ सिम्टम्स देते हैं, टी सेल्स एंड वो उसमें मैंने पढ़ा था कि ये सिम्टम होता है कि अंदर कुछ और है। हेलो, तुमने इम्यूनिटी पढ़ी हुई है? करते हैं तो टेम्परेचर चले जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आसान कर दूं। मैंने एनी पायरोजन, जिसमें कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो या कोई भी चीज हो जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और वो बॉडी के अंदर आ जाए, ठीक है, तो बॉडी एलिवेट्स द टेम्परेचर। बॉडी क्या करता है? अपना टेम्परेचर एलिवेट करता है। चाहे वो कोई भी नन्हा सा वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी पार्टिकल हो जो बॉडी के लिए फॉरेन हो, बॉडी के लिए, बॉडी का अपना पार्ट ना हो, कहीं फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ रहा है, तो द बॉडी मेक्स द अलार्मिंग कंडीशन। देखो, जो फीवर आना है, फीवर का वर्ड तुम लोग सबने सुना है। मुझे एक बात बताओ, फीवर इज अ डिजीज या इसको हम किसी और पार्ट से किसी और पार्ट से इंडिकेट कर सकते हैं? सर इट्स अ सिम्पटम, इट्स अ सिम्पटम, Sir, इट्स जस्ट अ सिम्पटम। disease है। नो, तो- इट्स सिम्पटम। ठीक है, सिम्टम तो पेन भी हो सकता है ना। सिम्टम तो बहुत सारी कंडीशंस को कैसे? इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। सिम्टम्स इज अ कंडीशन। सिम्टम्स क्या है? व्हाट इज द बॉडी कंडीशन? अब मेरी बात गौर से सुनो। फीवर इट्स एन अलार्म। फीवर क्या है? अलार्म। इंडिकेटर और अलार्म। तुम लोग सब ने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया होगा। यस सर। क्या होता है टाइट्रेशन? मैं थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं बोल गया। टाइट्रेशन पता ही होगा नहीं मुझे। नहीं, हाँ हाँ क्या पता है क्या सर। क्या होता है टाइट्रेशन? सर किसी नोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से अननोन कंसंट्रेशन जो वाले सॉल्यूशन डालना होता है, सॉल्यूट, किसी अननोन सॉरी, व्हाट वी कैन से, Solvents and एसिड और solvents. बेस का रिएक्ट करवाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टाइट्रेशन। पार्टीशन। एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे वो न्यूट्रलाइज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। जब वो न्यूट्रलाइज होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो न्यूट्रलाइज हो गया? कलर चेंज हो जाता है सर, कलर चेंज हो जाता है, इंडिकेटर। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? जी सर। जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो कलर चेंज हो जाता है। कलर क्या होता है? हम एक इंडिकेटर डालते हैं, फिनोफ्थलीन, जो हमें इंडिकेट Yes, sir. कर रहा है, इंडिकेट करता है कि अब न्यूट्रलाइजेशन हो चुकी है, इजंट इट? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। वी आर मूविंग ऑन अ कार हो या बाइक हो, हमें राइट टर्न लेना है, हम राइट इंडिकेटर देते हैं। इट मींस दैट वी हैव टू मूव ऑन राइट। इंडिकेशन, किसी भी चीज को इंडिकेट करना कि ये पार्ट हो रहा है आपके साथ। अलार्म, किसी चीज से हम आगाह करते हैं, जिस तरह फायर अलार्म होता है बिल्डिंग्स में। फायर अलार्म्स की एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, चैप्टर नंबर 11 हीट में पढ़ी है क्या? चलो, अभी तो स्टार्ट ही लिया होगा तुम लोगों ने। फायर अलार्म्स बिल्डिंग में लगे हुए होते हैं। काम क्या होता है फायर अलार्म्स का? सर इन्फॉर्म करते हैं कि कहीं
बायोमेटालिक स्ट्रिप्स से फिर वो अलार्म बजता है, फिर अलार्म से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई हैव टू आस्क, बिल्कुल बायोमेटालिक थर्मोस्ट्रिप होती है, करने के लिए बैंड हो जाती है तो अलार्म बजता है। अलार्म बज जब जाता है, फिर हमें मतलब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक बात मुझे सिंपल सी बताओ कि बिल्डिंग में आग लगी है तो मैं जाके फायर अलार्म बजाऊंगा या वो खुद बजेगा? खुद बजेगा सर। खुद सर बजेगा। वो जब खुद राइज होता है बचेगा। तो खुद ही बचता है। अब सेंस मेरी से बॉडी के अंदर, अब मेरी बॉडी या किसी भी पेशेंट की बॉडी में कोई वायरस पेनिट्रेट कर रहा है, कोई बैक्टीरिया पेनिट्रेट कर रहा है, तो हाउ दिस बॉडी कैन रिस्पॉन्ड, ये बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे खुद ही करेगी? बचेगा। मतलब बॉडी कैसे बचेगी? फीवर होगा ना। फीवर होगा। Fever. तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पायरोजन, जिस आई एम यूजिंग अ वर्ड पायरोजन, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ जिसको मैं तुम लोग भी कहूंगा, तुम लोगों को भी कहूंगा कि तुम लोग भी ये वर्ड यूज किया करो फॉर वायरस। पैथोजन क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, पैथोजन पायरोजन क्यों कह लो, पैथोजन कह लो, इट वुड बी ओके। पैथोजन इज अ गुड वर्ड, लेकिन पायरोजन आपका बुक वर्ड है, पैथोजन एक अच्छा एडवांस वर्ड है। तो whenever any pyrogen or pathogen, it could be include any virus, any bacteria, any fungi or any protozoa when come inside the body, so our body alarm, हमारा बॉडी हम क्या करता है, अलार्म करता है, इंडिकेट करता है in a sense of a thing that is called what, that is called fever, or what we can say pyrexia, or what we can say pyrexia। मतलब हमारी बॉडी के अंदर पायरोजन या पैथोजन, ये वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये कोई भी चीज जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, या हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो हमारी बॉडी में इंडिकेशन आती है फीवर, पायरेक्सिया, जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है क्लास, राइज होता है। इट मीन्स आवर बॉडी अलार्म अस कि हमारे कि भाई बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया मौजूद है जो बॉडी में अनसर्टेन एक्टिविटी कर रहा है, so you're gonna have to do something. Either you're gonna have to take rest, either you're gonna have to take medicine. So what is fever and pyrexia? That is not a disease, that is an indication, that is an alarm which indicate the body when any pyrogen or pathogen come inside it. मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल तुम लोग से पूछना चाहता हूँ कि ये जो फीवर का रिस्पॉन्स है, जो फीवर आ रहा है, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये सबको पता होना चाहिए। इट इज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स। फीवर आना ये कौन सा रिस्पॉन्स कहलाता है बेटा? इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होता है ये? Now what is that meant to be as for word immune? आजकल बहुत चला हुआ है ये वर्ड, आजकल बहुत चला हुआ है ना, हर एक के नाम पे होता है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। ये इम्यून सिस्टम होता क्या है भाई? बॉडी का डिफेंस सिस्टम। बॉडी का डिफेंस। यस सर, जो बाहर जम बोलो। से जाता है बिल्कुल। और कितने डिफेंस सर, सिस्टम जो होते हैं? बाहर से आने वाले से उनकी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। that is a defense system, immune system, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बाहर से आने वाली चीज। कितने लाइन ऑफ डिफेंस पर मुश्तमिल होता है हमारा इम्यून सिस्टम? ये तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। If anyone knows, two lines of first line defense, second line defense. second line defense and third line defense as well. Our immune system would be comprised of three line of defense, first, second and third. First और second नॉन स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन स्पेसिफिक। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक होता है। मुझे इनमें से स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक नहीं जानना, मुझे इसमें से ये बताओ कि जो फीवर आ रहा है बॉडी में वो कौन सा रिस्पॉन्स है? आइदर इट वुड बी द फर्स्ट लाइन डिफेंस, आइदर इट वुड बी द सेकंड लाइन डिफेंस, और आइदर इट वुड बी द थर्ड लाइन डिफेंस। सेकंड लाइन नहीं सर, ये नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक सेकंड लाइन में भी स्पेसिफिक है। अच्छा, मैं तुम लोगों को पहले स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक क्लियर कर दूं थोड़ा सा। थर्ड लाइन सिर्फ हमारा स्पेसिफिक है, बाकी फर्स्ट लाइन हमारा स्पेसिफिक नहीं है। थर्ड लाइन में हमारे पास फीवर थर्ड है, फीवर थर्ड है क्योंकि स्पेसिफिक है फीवर। थर्ड लाइन हमारा स्पेसिफिक है, जिसमें हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, टी सेल्स एंड B cells. B cells. T cells mostly work against the viruses and B cells mostly work against bacteria, protozoa and fungi. So I gonna have to say one thing. मैं एक चीज तुम लोगों को बताता चलो. Have anybody
seems about kidney transplantation? क्या किसी ने transplantation का word सुना है? यस सर, सुना है And what is that? सर। किसी Yes, दूसरे एक sir, बॉडी से दूसरी सुना है। बॉडी को जिसको नीड होती है कि उस वहाँ ट्रांसप्लांट कर देना। क्या जी ऑर्गन बिल्कुल। को सर। सर, लेकिन उसके organ लिए को- टी सेल्स मैच करने चाहिए। किसी उस organ मतलब को बोलो 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 बोलो। उनके सर जितना पढ़ा है वेस्टर्न में, बस वो थोड़ा याद आ रहा है कि उसके बहुत लिए अच्छा उनके पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत अच्छा बता रहे हो, बताओ। सर उनके टी सेल्स मैच करने चाहिए, जरूरी है। और तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, अदरवाइज नहीं होता था। और ब्लड ग्रुप भी। बहुत सारी चीजें हमें मैच करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा जो आइडियल मैच होता है वो 80 to 85 होता है, इससे ज्यादा हम मैच नहीं कर सकते क्योंकि हर बॉडी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। आइडियल मैच जो होता है वो हमारा 80 to 85% पे होता है, ये आइडियल मैचिंग है हमारी। और जिसमें हमारे बॉडी का सेक्स ग्रुप भी मैटर करता है, ब्लड ग्रुप भी मैटर करता है, टिश्यू ग्रुप भी मैटर करता है, टिश्यू कल्चर भी मैटर करता है, टी सेल्स भी मैटर करता है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं यहाँ पे एक बात तुम लोग से पूछना चाहूंगा, ये तो मैचिंग पर्पस है ना। हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी दोनों किडनी फेल हो गई है, उसको उसके फैमिली मेंबर्स में से कोई एक उसको किडनी डोनेट कर रहा है। तो किडनी डोनेट कर रहा है, उसको किडनी मिल गई पेशेंट को। आइदर दैट पेशेंट feel something uncertain or not. अच्छा, मैं यहाँ पे तुम लोग को एक बात बताऊं, जैसे ही हम उसको किडनी डिलीवर करते हैं ना, तो उसका जो सिस्टम है, उसका जो बॉडी का सिस्टम है, वो समझता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया मेरी बॉडी में। हालांकि उसके बेहतरी के लिए हमने उसको किडनी ट्रांसफर किया ना, लेकिन वो सिस्टम क्या समझ रहा है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। वो उसको क्या करने पड़ जाता है, उसको अटैक करता है। बॉडी में क्या आने लग जाएगा, फीवर आने लग जाएगा। आपने बॉडी के लिए क्या किया, आपने बॉडी के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस की कि उसको आपने उसकी फैमिली मेंबर से किडनी ट्रांसप्लांट किया, लेकिन उसकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती। भले मैचिंग 85% हो या मैचिंग 90% हो, भले मैचिंग 90% भी क्यों ना हो, जो कि बहुत ही आइडियल कंडीशन है, वो बॉडी इंडिकेट करती है दैट इट इज अ फॉरेन पार्टिकल, और उस पर वो अटैक करती है और अपना टेम्परेचर राइज कर देती है। तो स्पेसिफिक, मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड लाइन होता है। फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, इट कैन नॉट स्पेसिफाई दैट आइदर द थिंग वुड बी बेनिफिशियल और आइदर द थिंग वुड बी नॉन बेनिफिशियल। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ये इंडिकेट नहीं कर सकता कि जो आने वाली चीज है बॉडी में, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है या आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल है तो वो तो लाजमी टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन हम किसी पेशेंट को अगर किडनी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस बॉडी को टेम्परेचर आने लगेगा, विच अलार्म अस के बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल है। बॉडी को ये सेंस नहीं रहता, तो हम उसको इम्यूनो सप्रेसर करते हैं, इम्यून सप्रेस करते हैं। सप्रेस मतलब सप्रेसिव सेल से, हाँ, सेल से हम उसका इम्यून सिस्टम डिक्रीज करते हैं कि उसको फीवर ना आए। लेकिन अगर हम इम्यून सिस्टम उसका डिक्रीज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसको हाइजीनिक कंडीशन में रखना पड़ जाता है कि उसको कोई दूसरा जर्म्स अटैक ना करे। एक किडनी को बचाने के लिए हमने उस पेशेंट का इम्यून सप्रेस कर दिया। अब उस पेशेंट को कोई दूसरा वायरस या बैक्टीरिया अटैक ना कर दे, उसको हमें बहुत ही हाइजीनिक कंडीशंस में रखना पड़ता है। तो आई गोना हैव टू टेल यू व्हाट, ये फीवर आ रहा है, फीवर नॉन स्पेसिफिक है। फीवर क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। एंड आई गोना मेक द थिंग करेक्ट कि जो बच्चे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कह रहे थे, दे आर बीइंग एब्सोल्युटली राइट। ये फीवर और एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसको हम फीवर कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं, इट कम बाय द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, जो ये स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि आइदर द थिंग व्हिच इज बीइंग हैपनिंग ऑन टू द बॉडी, आइदर इट इज बीइंग beneficial or either it is being harmful. कोई मसला है यहाँ पर? If you want to make any question, you may ask. कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, पूछ सकते हो।
Okay, without wasting any further time, we're gonna have to start our next part. That is what? What would be the next and the last part we have in homeostasis? Excretion. Excretion. That's very great. Excretion. We have the last part, that is excretion. And now, what is excretion actually, by the way? Removal of Sir, toxic Which part? removal of undigested. Okay, चलो हम excretion को study करते हैं. Let's gonna be started over here a word that is called what? Excretion. I just gonna write only one word. मैं बहुत ज़्यादा कोई complex definition नहीं लिखने का आदी हूँ. मैं एक बहुत simple definition लिख रहा हूँ. Removal of. What is that? Excretion. Removal of. waste. Removal of waste. अब देखो मैंने तुम लोग को ये बताया था कि ये होम्योस्टेसिस तुम लोग बॉटनी के अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे और zoology के भी अकॉर्डिंग पढ़ोगे. Isn't it? Zoology. और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि जो तीनों टर्म हमने अभी पढ़ी, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ये तीनों टर्म हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये तीनों टॉपिक हमने प्लांट्स में पढ़े. फिर इन्हीं तीन टॉपिक्स को हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल और एक्सक्रीशन इन एनिमल, तो ये तीनों टॉपिक्स को हमें प्लांट में भी कवर अप करना है और तीनों टॉपिक्स को हमें एनिमल में भी कवर करना है. आई जस्ट राइट अ वर्ड ओवर हियर एक्सक्रीशन, और इसका एक बेसिक टर्म मैंने तुम लोग को क्या बताना चाहिए, दैट व्हाट इज एक्सक्रीशन एक्चुअली बाय द वे, इट्स अ रिमूवल ऑफ व्हाट, इट्स अ रिमूवल ऑफ वेस्ट. Nitrogenous waste. Sorry, I can't get you better. Nitrogenous waste. Nitrogenous अच्छा, तो waste. अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ. I just write the two things over here. One is plant and another one would be animal. So regarding excretion have the different terms regarding the different organism. हमारे पास यहाँ पे plant है और हमारे पास यहाँ पे animal है. When we made the definition of excretion according to what? According to the plant. अगर हम definition form करें according to the plant, तो ये चीज याद रखना कि प्लांट में नाइट्रोजनस मटेरियल असेंशियल होता है. प्लांट में नाइट्रोजनस मटेरियल क्या होता है? प्लांट में नाइट्रोजनस मटेरियल असेंशियल होता है, वो वेस्ट नहीं हो सकता. तो प्लांट में क्या लिखोगे? रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट. व्हाट वी राइट? रिमूवल ऑफ एक्सेस वेस्ट. और अगर मैं एनिमल के बारे में लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ओवर हियर कम्स बाय द एक्सक्रीशन. यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन रही है कि प्लांट में जो चीज वेस्ट है, प्लांट में जो वेस्ट है वो सिर्फ उसका क्या है? एक्सेस है. जैसे कि इसमें वाटर एक्सेस हो सकता है तो वो रिमूव हो जाता है बॉडी से, ऑक्सीजन एक्सेस हो सकता है तो वो रिमूव हो जाता है बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होता है तो वो रिमूव हो जाता है, और सॉल्ट एक्सेस होते हैं तो वो बॉडी से क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं. इट वुड नॉट बी द टॉक्सिक फॉर प्लांट. क्या वाटर प्लांट के लिए टॉक्सिक है? मुझे बताओ, क्या वाटर प्लांट के लिए? नो, बट इफ इट वुड बी एक्सेस इट वुड बी रिमूव. लेकिन अगर वो एक्सेस होगा तो वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. वाटर रिमूव कैसे होता है प्लांट से? ट्रांसपायरेशन के जरिए. ओनली बाय मींस ऑफ टोमेटो से. ट्रांसपायरेशन. नो सर, ग्यूटेशन के भी जरिए होता है. ग्यूटेशन के भी जरिए होता है. तो मुझे एक बात बताओ, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? सर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर Where? Aerial through stomata. And where does stomata would be present? Sir, on the lower side of the leaves. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि प्लांट, आई जस्ट मेक अ थिंग ओवर हियर, तो थोड़ा सा मुझे बता दे जाओ.
The water come inside the plant. Have you seen over here? तुम सबको नजर आ रहा है? जी जी सर सर। Okay. Just for example, the water come inside the plant 100%. Plant में water कितने % जा रहा है? 100. 100%. Plant में water कितने जा रहे हैं class? It would be 100%. और मुझे बताओ कि इसमें से ट्रांसपायरेशन कितने % होगा और प्लांट में कितने % रहेगा वाटर? How much amount of water would be remain inside the plant and how much amount of water would be expel out? नहीं पता तो तुक्का लगाओ। जितने की प्लांट को जरूरत है। नहीं नहीं ये नहीं बोलो, मुझे न्यूमेरिक वर्डिंग्स में आंसर दो। 10%, 20%, 70% होएगा, 20% जाएगा, निकल जाएगा। ओके। अच्छा एक काम करो, अपने अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखो ताकि मुझे पता चल जाए ना कि सबके आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। जरा सा अपना चैट बॉक्स ओपन करो और साथ साथ लिखते जाओ ताकि मुझे इंडिकेशन हो दी जाए कौन क्या बोल रहा है। चैट बॉक्स सबको पता है ना ऑपरेट करना? अभी देख लूं कहाँ पे चैट। ओके, एल्टर एच करोगे तो चैट आ जाएगा। सर आप क्या रिपीट कर सकते हैं? मैं आपको क्वेश्चन क्या दोबारा समझ आ रिपीट कर रहा हूँ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि प्लांट में वाटर आ रहा है 100%। इसमें से कितने % वाटर प्लांट में रहेगा और कितने % वाटर ट्रांसपायर होकर एक्सपेल हो जाएगा? तो यू गोना हैव टू गिव मी द आंसर बोथ के कितने % प्लांट में रहेगा और कितने % ट्रांसपायर हो रहा है। तो पहला आंसर मेरे पास है 80% प्लांट में रहेगा और 20% ट्रांसपायर हो जाएगा। और जो दूसरा आंसर है 60%, तो 60% क्या होगा बेटा? रहेगा या ट्रांसपायर हो जाएगा? ये बताओ। 60% एब्जॉर्ब, 30% ट्रांसपायर। ओके, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 60% रिमेन, 30% ट्रांसपायर, 80% रिमेन, 20% ट्रांसपायर। इस तरह से भी अपना आंसर कोट कर सकते हो। हैव एवरीबॉडी सबमिटेड द आंसर? क्या सबने अपना आंसर सर सबमिट? मैंने नहीं किया। तो करो सर मैंने नहीं किया। करो करो करो, आराम से करो। Okay, only 5 to 6% remain in plant. Sayyada Uruj Fatma, I have a question to you. मुस्तफा? Hello, Yes Sayyada sir. Uruj Fatma, I have a question to you. How you can say कि 5 to 6% remain in plant? Which source you have get in that thing? तुम्हें ये कौन से सोर्स से पता चला? तुक्का लगाया या फिर कहीं से पता चला ये? Just give me your answer accurately. सबने दे दिया आंसर? No one is left. जब फर्स्ट ईयर में और 9th में पढ़ा था तो मेरी टीचर ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द वाटर एक्सपेल आउट फ्रॉम द प्लांट। भाई मैंने तो किसी के पढ़ाने पे चैलेंज ही नहीं किया। मैं तो ये तुम लोगों को बुक के अकॉर्डिंग सारी चीजें बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द बुक सेज that 99% of the water would be transpired. Your book says that 99% of the water would be transpired. So how much water would be left into the plant? Plant में कितने % बचा? Only 1%. ठीक है? So that is the thing which we have regarding about for plant. That regarding transpiration, 99% of the water would be transpired. And how much thing would be left? कितना % बचा भाई? Only 1%, only 1 to 2%. So that is हाँ बिल्कुल 1%. So that is the thing which you gonna have to remember about the thing about the respiration in plant. कोई मसला यहाँ तक बेटा? कोई मसला? So that is the thing which we have regarding your textbook. ये अपने textbook में थोड़ा सा check भी कर लेना कि how much percentage of water. Yes, maximum quantity of water would be goes outside. But the thing which we have seen that approx 99% of the water. Okay, now I getting the thing. मुझे यहाँ पे चीज मिल चुकी है मेरी मतलब की। तो
रिगार्डिंग योर टेक्स्ट बुक, मैं किसी और चीज का हवाला ही नहीं दे रहा, ना मैं गूगल का कह रहा हूँ ना किसी और चीज का. So plant absorb large quantities of water from the soil. Only 1 to 2% of the absorbed water used in photosynthesis and other metabolic processes, where the rest of the water would be lost. So you can find it out the things over here. That is the part of your textbook. कहाँ चला गया? Okay, you can see 1 to 2%. Have you seen the part? Mini textbook. Only 1 to 2% would be absorbed, whereas approx 99 to 80% of the water would be ट्रांसपायर. तो ये रेफरेंस था तुम लोगों का फर्स्ट ईयर से. तो फर्स्ट ईयर की भी चीजें हम लोग को बहुत सारी चीजें हम लोग को याद रखनी चाहिए, या नहीं याद तो कोई मसला नहीं. वी गोना हैव टू मेक श्योर हम अपने लेक्चर्स को इसी तरह कंपाइल अप करेंगे कि हमें वो सारी चीजें इंडिकेट होती जाएं. तो दैट इज द थिंग व्हिच वी हैव फॉर प्लांट. ठीक है, ट्रांसपायरेशन से, ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस हो रहा है. वाटर इज बीइंग एसेंशियल फॉर प्लांट, लेकिन अगर एक्सेस होगा तो वेस्ट हो जाएगा. ऑक्सीजन, आइदर ऑक्सीजन इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द प्लांट और नॉट. क्या ऑक्सीजन जरूरी है प्लांट को या नहीं है? It's necessary. Why it is जी necessary? सर जरूरी है. क्यों भाई, क्यों जरूरी है? रात के टाइम. क्यों जरूरी है रात के सर टाइम? रात के टाइम. हाँ, सर क्योंकि वो ऑक्सीजन रात के टाइम लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है. किसके लिए? ऑक्सीजन प्लांट के लिए जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. दैट इज बीइंग एब्सोल्यूट रॉन्ग. फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन के लिए, रिस्पायरेशन के लिए रात में जरूरत है. तो रात में क्या होती है? रिस्पायरेशन रिक्वायर्ड है. कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन रात में रिक्वायर्ड होती है रिस्पायरेशन के लिए, लेकिन ऑक्सीजन वेस्ट होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है रिस्पायरेशन के दौरान, लेकिन फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या हो रहा होता है? यूज हो रहा होता है. ठीक है ना. तो वन थिंग आई गोना हैव टू मेक अबाउट अ पार्ट फॉर रिस्पायरेशन. अस्सलाम वालेकुम जी. हाँ तला, थोड़ी देर बाद फोन करोगे? आई एम ऑन अ क्लास. मुझे 5 मिनट बाद फोन कर. ठीक है, ओके. सो वाटर लॉस हो रहा है, एक्सेस हो रहा है तो लॉस हो रहा है. दैट वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयंस वुड नॉट बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट. वो सिर्फ एक्सेस होगा तो प्लांट बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एनिमल के हवाले से, तो एनिमल में जो मैंने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज इट? रिमूवल ऑफ, व्हाट इज दैट? टॉक्सिक वेस्ट. And now what is toxic, by the way? Toxic means harmful, poisonous, harmful. Okay, it would not remain inside the organism. Poisonous, harmful. That is the nitrogenous waste. ये nitrogenous waste होते हैं in the form of, मैं यहाँ पे तुम लोगों को now what is that? What is that? क्या ये? NH3. ammonia. Oh, that's great. That's great. अब next बताओ. मतलब इतनी केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं लगती है हमें. अच्छा, नहीं हम भी बायो गए हैं, हमें भी केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, लेकिन करना तो पड़ता है. लेकिन ओके, नेक्स्ट वन C5 C5O3 N4H4. Yeah. Now let's what are the things that is NH3 सबको याद रहता है. That is what? Ammonia. CO NH2 whole 2, that is urea. C5O3 N4H4, that is uric acid. Uric acid. So that is the thing which we have, the nitrogenous waste. If it is being formed, it have to expel out from the animal. अगर ये फॉर्म हो रहा है तो उसको एक्सपेल आउट होना है एनिमल से. अगर एनिमल में रहेगा so it would be the poisonous thing for the animal. It would harm the animal. तो कोई मसला क्लास आज के लेक्चर के हवाले से? यस क्लास. सर आप थोड़ा बताएं ट्रांसपायर का जो 99% होता है प्लांट से. अच्छा, ट्रांसपायरेशन में तुम लोगों ने अगर चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक पढ़ा हो एसेंट ऑफ सैप, कि जिसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट टू लीफ.
लीफ पे एक हमारे पास कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास बोतल है, हमें बोतल से कोल्ड ड्रिंक पीनी है और हमारे पास स्ट्रॉ है, तो जैसे ही हम मुंह लगाएंगे कोल्ड ड्रिंक फौरन मुंह पे आ जाएगी क्या? हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है और उसमें स्ट्रॉ लगी हुई है, हम जैसी स्ट्रॉ को मुंह में पहले सर straw हम में एयर सकेंगे। नहीं, हाँ हाँ, दैट इज द थिंग, हम एयर से सकिंग करेंगे ना, हम पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, ऐसे ही है ना। हम मुंह की तरफ क्या करेंगे, एक सकिंग फोर्स अप्लाई करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा कि कोल्ड Yes, ड्रिंक sir. Pull नीचे करेंगे। से ऊपर की तरफ आएगी, पुल करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो हमारी जो लीव्स होते हैं वो पुल करते हैं वाटर को, ट्रांसपायरेशन पुल जिसको अफेक्ट कहता है। तो इस तरह वाटर क्या होता है, एक ज्यादा मिकदार में मूव करता है फ्रॉम रूट टू लीफ। ओनली 1 to 2% would be absorbed for the plant, for the process of metabolism, for the process of photosynthesis, but whereas 99 to 98% of water would be transpired, that is due to the transpiration pull in order to form the ascent of sap. Ascent of sap याद रखना क्या होता था कि मूविंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। तो इसको हम और डिटेल करेंगे। ट्रांसपायरेशन का फैक्टर अभी हमारे Cell पास by आ cell. गया, ट्रांसपायरेशन का फैक्टर अभी हमारे पास आएगा। अभी जो हमने चीजों को डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस ओनली द 3 थिंग्स एंड व्हाट आर दे। जस्ट कंक्लूड माय लेक्चर, रिकैप करो लेक्चर्स को। व्हाट आर द 3 थिंग्स वी हैव बीन स्टडीड, क्या क्या स्टडी किया? Osmoregulation, Thermoregulation, thermoregulation, एंड एक्सट्रीशन। तो इन तीनों टर्म्स को हमने सिर्फ आज पढ़ा है। एंड नाउ ऑन टुमारो व्हाट यू गोना हैव टू स्टार्ट, क्या स्टार्ट लेना चाहोगे मुझे बताओ। बॉटनी पढ़ोगे, जोलॉजी पढ़ोगे, क्या पढ़ना चाहोगे पहले? sir, zoology. ऑल ऑफ यू वांट टू स्टडी फॉर जोलॉजी? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, कल जोलॉजी स्टार्ट लेते हैं। सो अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अब जब हम जोलॉजी उठाएंगे तो हमें ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल पढ़ना पड़ेगा, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल, एक्सट्रीशन इन एनिमल। ये 3 टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे एनिमल्स के लिए। फिर इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो दैट इज द थिंग व्हिच वी गोना हैव टू स्टार्ट इंशाल्लाह जोलॉजी ऑन टुमारो। तो कोई मसला आज के हवाले से? No, sir. Okay, No, sir. so we're gonna have to end this lecture, end this session. Take care. Inshallah, we're gonna come through for zoology, osmoregulation. Inshallah, on tomorrow. Take care. Allah Hafiz, class. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Yes. Hafiz.